Hello guys, welcome back to our new video. How are you all? I hope you all are doing well and your study of triple A is also going well. So today is our day 6 and we have to study ethical issues today. So let's start our topic, that is ethical issues. And yes, I hope the syllabus which we have covered till now is clear to all. Okay, so let's start our video. Ethical issues. As I told you earlier, that there might be many ethical issues which can be faced by any company, like in term of auditor judgment, in case of auditor competence, and in case of auditor professional behavior, in term of auditor objectivity and independence. So there are many ways in which the auditor independence or there might be ethical issue which can be created by the auditor. So, as we discussed earlier, that we are going to study ethical issue with Hammer Group. So let's start the question. And as we have already given in the question that we have to discuss the ethical issue from Exhibit 5. So let's read Exhibit 5 first. The group, which is not a listed, follows best practice corporate governance principle by having an effective internal audit department which report to an audit committee of independent non-executive directors. So first one point जो हमें कहा जा रहा है, that is investment advice. The group is now considering further international investment in next few years, and the group audit committee has asked your firm to provide advice on the selection of target companies and the financing of any investment which take place. A fees has been proposed for providing these services amounting to 75% of the audit fees. Okay. And next one, consolidation adjustment. As the group finance director, which does not have the expertise to complete the conversion from Farland accounting standard to IFRS accounting standard, your firm has been approached for assistance in this matter. They have requested that as a part of the audit, your firm make the necessary adjustment to apply IFRS accounting standards to later group financial statements and then to consolidate the group financial statement. So, okay, we have given the two issues here and we have to consider what ethical issue can be arises in this case. So let's discuss first one, that is investment advice. And we have to consider three things in our mind when we are writing the ethical issue. Firstly, what is given in the question, that is investment advice, and we have to give a brief description about what is happening in this case. First one, the group is now considering further international investment in the next few years, and the group audit committee has asked your firm to provide the advice on the selection of the target companies and the financing of any investment which take place. ओके सो मीन्स हो क्या रहा है इस केस में कि हमारा जो एक ग्रुप है, मीन्स जो हैमर ग्रुप है, वो क्या कंसीडर कर रहा है कि उसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है एंड उसके लिए जो ग्रुप की ऑडिट कमेटी है वो आपको क्या कहती है कि वो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करने में हेल्प करे, टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करने में हेल्प करे एंड द फाइनेंसिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट विच टेक प्लेस, और कैसे उसको इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस मिल सकता है। इसके अलावा एक ग्रुप हैमर ग्रुप क्या प्रपोजल देता है कि अगर वो कंपनी हमें मीन्स ऑडिट फर्म अगर हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो हम आपको एक एडिशनल फीस भी देंगे जो कि होगी 75% ऑफ दी ऑडिट फीस। सो मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, एक मेरा रिस्क अराइज हो रहा है, एथिकल इश्यूज अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होता है। एंड सेकंड वन, देन वी हैव टू कंसीडर व्हाट ethical issue is arising in this case.
Okay. So, and then last one, we have to define what is that ethical issue, and then we have to define how the ethical issue is related to this case. So let's start. Like first one is investment advice. I have given the brief description about what is happening in the case. The group has asked Chenley Associate, which is our audit firm, for advice in international expenses and also to perform the adjustment to the latter co-financial statement to align its accounting policy with the IFRS accounting standard and group accounting policy. तो अब मुझे क्या पता चल रहा है इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है एक एथिकल इशू अराइज हो रहा है हमारी फर्म के लिए ऑडिट फर्म के लिए एथिकल इशू अराइज हो रहा है सो कैसे पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या हो रहा है कि मुझे कहा जा रहा है कि मुझे क्या करना है सिलेक्शन ऑफ टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करने में हेल्प करनी है तो इससे मुझे क्या दिमाग में आ रहा है इससे मुझे क्या माइंड में आ रहा है कि जो मैं क्या ले रही हूँ नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि मुझे टारगेट कंपनी कौन सी एक्वायर करनी है सिलेक्ट करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैनेजमेंट की खुद की होती है बट इस केस में मैं क्या कर रही हूँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में ले रही हूँ तो इस वजह से क्या थ्रेट अराइज होता है हमारा मैनेजमेंट थ्रेट अराइज होता है तो फर्स्ट वन मुझे इसको पढ़ने से क्या समझ आया कि मेरा जो है अगर मैं एडवाइस प्रोवाइड करती हूँ कि मुझे कौन सी टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करना है कैसे उसको फाइनेंस करना है तो मैं क्या कर रही हूँ एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले रही हूँ जिसकी वजह से एक मैनेजमेंट थ्रेट क्रिएट हो रहा है तो फर्स्ट वन मैं क्या कर सकती हूँ पहले मैंने बताया कि केस में क्या है हमारा केस स्पेसिफिक मैंने इसको बताया उसके बाद फिर मैंने बताया कि फर्स्टली इन्होंने बताया कि अगर मैं हेल्प करती हूँ सिलेक्शन ऑफ टारगेट कंपनी या फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में तो ये प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विसेज है अगर स्पेशली अगर मैं ऑडिटेड एंटिटी को हेल्प कर रही हूँ तो उस केस पे सेकंड वन IESBA इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि एक हमारा कोड है वो क्या कहता है कि कोई भी ऑडिट फर्म नॉन ऑडिट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि ये किसी भी ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को थ्रेट करता है और मेनली किस तरीके से थ्रेट क्रिएट कर सकता है इन पर्टिकुलर फैमिलियरिटी सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू मैनेजमेंट एडवोकेसी थ्रेट आर पॉसिबल so this is the general description which is given by the examiner and it is not necessary to give it is not compulsory to give it by us also and we can start our point from here first one like I have told you that the company is taking the management responsibility. First one, in providing advice on the selection of target companies and on financing arrangement, the main risk is that audit firm could be seek on taking the responsibility of management. I have told you ना कि अगर मैं किसी भी सिलेक्शन में हेल्प कर रही हूँ टारगेट कंपनी की और उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही हूँ तो उसमें मेरा क्या मैं मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ एंड एज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड क्रिएट अ फैमिलियरिटी थ्रेड हाँ हो सकता है कि अगर मैं मैनेजमेंट के साथ इतना हो जाऊंगी कि उसके साथ इतना मिल जाऊंगी कि हमारे एक फैमिलियरिटी थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है बिकॉज द फर्म become too closely aligned with the view and interest of the management obviously so the code state that an audit firm should not be assume management responsibility for an audit client otherwise an ethical threat to the auditor independence would be created so मैंने कुछ नहीं किया मैंने क्या किया मैंने फर्स्टली अपना क्वेश्चन पढ़ा मुझे क्वेश्चन से पता चला कि अगर मैं किसी भी टारगेट कंपनी को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही हूँ अपनी एक किसी भी कंपनी को या किसी भी ग्रुप को तो उसकी वजह से क्या होगा एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ जिसकी वजह से क्या थ्रेट अराइज हुआ एक मैनेजमेंट थ्रेट अराइज हुआ एंड मैनेजमेंट थ्रेट अराइज होने के साथ साथ क्या हो सकता है कि वो उस कंपनी के साथ उस ग्रुप के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाए कि उसकी वजह से एक फैमिलिटी थ्रेट भी क्रिएट हो जाए तो इसकी वजह से ऑडिटर की इंडिपेंडेंस क्या होगी जो अफेक्ट होगी तो उस कारण से क्या होगा एक एथिकल इश्यू अराइज हो सकता है नेक्स्ट वन मैं इसी में देखती हूँ अगर मैं देखती हूँ अगर मैं एक एडवाइस प्रोवाइड कर रही हूँ सिलेक्शन ऑफ टारगेट कंपनी में एंड फाइनेंस प्रोवाइड कर रही हूँ अब तुम ध्यान से सोचो कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो उस केस में
मैं एक कंपनी को एक्वायर कर रही हूँ 20 करोड़, जो भी है 20 करोड़ मैं ज्यूम करके चलती हूँ। अब बाद में मेरी क्या, एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको बाद में चेक करूं कि जो कंपनी ने सिलेक्ट मीन्स जो टारगेट कंपनी को एक्वायर किया 20 करोड़ में, क्या वो सही है, क्या वो अमाउंट सही है या नहीं है। मीन्स मैं क्या, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या थी कि उसको चेक करना कि उसने जो अमाउंट, जिस अमाउंट में एक्वायर किया है कंपनी को, वो सही है या नहीं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उसकी हेल्प ही कर रही हूँ उसकी बजाय। तो इसकी वजह से क्या थ्रेट क्रिएट हो रहा है कि एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है। कैसे कि मेरा क्या काम था, मेरा काम तो था उसको रिव्यू करना कि जो कंपनी ने अक्वायर किया है, जिस अमाउंट में अक्वायर किया, वो सही है या नहीं है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही दिखाया गया है नहीं है। लेकिन मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो उसको सिलेक्ट करने में ही हेल्प कर रही हूँ टारगेट कंपनी को। तो उसको उसमें क्या होगा, पहले तो मैं उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करूंगी, उसके बाद खुद ही देखूंगी कि मैंने जो अमाउंट बताया है, जो मैंने अमाउंट 20 करोड़ का बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सही है या नहीं है। तो मैं खुद का काम खुद ही रिव्यू कर रही हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं पहले क्या बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी कि सेल्फ रिव्यू मीन्स सिलेक्शन ऑफ टारगेट कंपनी एंड फाइनेंसिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट वुड विच टेक प्लेस could also create a self review thread. Then after that I will told you कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड होता क्या है। आफ्टर दैट मैं बताऊंगी इस केस को लिंक करके कि कैसे इस केस में जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो रहा है। सो देखते हैं अब हम कैसे। प्रोवाइडिंग द एडवाइस वुड ऑल्सो क्रिएट, टेक्स्ट वन वी रीड फर्स्ट। A self-review threat would also be arises when the auditing the group. The audit firm would be evaluating risk and performing the audit procedure pertaining to the advice which they have given and would be less likely to highlight the issue or challenge assumption. These impact the quality of the audit perform. जैसा कि मैंने बताया, अब जैसे इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन हम इसको इस तरीके से ना लिख के हम इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वन मैं बताती हूँ कि इट वुड ऑल्सो क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट रेट। एंड सेल्फ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब ऑडिटर खुद ही के काम को खुद ही रिव्यू कर रहा है। तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट हमारा वो क्या है, सॉरी सेल्फ रिव्यू थ्रेट हमारा वो हो गया है। एंड देन उसके बाद मैं केस से लिंक करके बता रही हूँ व्हाई सेल्फ इंटरेस्ट रेट रिव्यू थ्रेट इज क्रिएटेड। अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइजेस because the audit firm would be evaluating the risk and performing the audit procedure pertaining to the advice which they have given, क्योंकि उन्होंने खुद ही एडवाइस दी थी और खुद ही उस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड विच वुड लेस लाइकली टू हाईलाइट द इश्यू और चैलेंज रिसेप्शन। दिस इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट परफॉर्म। ऑब्वियसली अगर मैं खुद के काम को खुद ही चेक कर रही हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं ऑडिट के टाइम पे क्या सोचूंगी कि मैंने तो खुद ने ही ये परफॉर्म किया था, हाँ हाँ ये अमाउंट जो ली गई है वो सही होगी। तो मैं खुद का काम रिव्यू नहीं करूंगी, तो इससे क्वालिटी ऑफ ऑडिट क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। थर्ड वन, थर्ड वन क्या हो सकता है, अभी मैंने क्या बताया है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया हमारा, मैनेजमेंट थ्रेट हो गया। अब a fees has been performed for the advice amounting to 75% of the audit fees. 75% is much more audit fees which is given to the audit firm, because if the company is taking like 10 lakh rupees for an audit, for providing the audit services. But for the non-audit services, if the firm has taken 7 lakh 50,000, then it is much more than सो लाइक प्रोवाइडिंग द एडवाइस वुड ऑल्सो। तो इसकी वजह से मैं फर्स्टली बताती हूँ, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट हो रहा है। अब मैं बताती हूँ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे क्रिएट होता है, जब किसी भी कम जिस ऑडिट फर्म का क्या होने लग जाता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाता है, जब वो ऑडिटर अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है कि इससे मेरा बेनिफिट होगा, अगर मैं उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इससे मेरा बेनिफिट होगा। तो इसकी वजह से जो थ्रेट अराइज होता है, उसको क्या कहते हैं, हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं। क्योंकि जब ऑडिटर खुद के बारे में सेल्फ सेल्फ के बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास तो 75% ऑडिट फीस आ रही है, 75% ऑफ दी ऑडिट फीस आ रही है, मीन्स अगर मुझे 7,50,000 मिल रहा है, तो मैं क्यों ना ये सर्विसेज प्रोवाइड करूं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑडिटर के माइंड में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि
उसको फीस का लालच आ रहा है, तो इसकी वजह से जो थ्रेट क्रिएट होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो रहा है। तो इस एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और हमने पढ़ा कैसे प्रोवाइडिंग द एडवाइस वुड ऑल्सो क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ड्यू टू द फीस विच वॉज पेबल फॉर द एडवाइस प्रोवाइडेड, particularly due to the size of the fee which would influence the Stanley Associate when performing these services। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो 75% ऑडिट फीस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है जो कि एक ऑडिट नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए पे की जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। सो द फैक्ट दैट द फीस फॉर दिस सर्विसेज वुड अमाउंट टू 75% और द ऑडिट फीस indicate that the fees might be significant, and in combination with the audit fees and fees for any other services provided to the group। so it mainly जो 75% फीस है वो क्या दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है एज इन कॉम्बिनेशन विद द ऑडिट फीस। जो ऑडिट फीस को ले रहा है उसके साथ जो 75% ऑफ द ऑडिट फीस उसको नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत ज्यादा है। सो मीन्स कि इसकी वजह से क्या होएगा कि अब कंपनी मैं एक ऑडिटर हूँ, मुझे मुझे ऑफर दिया जाएगा कि मैम आपको 75% हम एक्स्ट्रा देंगे नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं इस क्लाइंट को नहीं जाने दे सकती, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी चाहे मेरे पास टाइम हो या नहीं हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे अंदर एक क्या क्रिएट हुआ, एक सेल्फ मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मुझे तो ये पैसा चाहिए है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑडिट क्या होगा, उस क्लाइंट को रिटेन करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एन एक्चुअल एंड परसीव फीस डिपेंडेंसी वुड created, meaning that the firm will be motivated to act in a way which would ensure retention of the client। कि मतलब वो उस क्लाइंट को हाथ से जाने के लिए कभी भी नहीं सोचेगा, हमेशा क्या सोचेगा कि वो उस क्लाइंट को रिटेन करके रखे। तो सेल्फ इंटरेस्ट रेट कैसे क्रिएट हुआ कि अगर मैं 75% मीन्स अगर मेरा यहाँ पे 60% भी होता तो तब भी वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ही कंसीडर की जाती। जो ये हमें अमाउंट जो हमें बताए गए हैं ये हमें स्पेसिफिकली जो हमारा ऑडिट का आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है ट्रिपल ए में, तो हम उसको रीड करके भी देख सकते हैं कि किस अमाउंट तक का क्या क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा थ्रेड मीन्स जानना है कि किस तरीके से कोई भी थ्रेड क्रिएट हो सकता है, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सो हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सो 70 अभी हमने ऑडिट फीस के बारे में भी जाना कि ऑडिट फीस की वजह से कैसे एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट हो सकता है। आई होप फर्स्ट वन पैराग्राफ जो है वो सबको क्लियर होगा। एंड आई थिंक 3 इज मोर देन इनफ, बट मैं इसमें एक थ्रेट और क्रिएट हो रहा है। कैसे, एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है इसमें। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी भी सिलेक्शन कंपनी में हेल्प कर रही हूँ, टारगेट कंपनी में, एंड कल को अगर कोई भी केस मीन्स को कुछ भी इश्यू अराइज होता है और उस केस में मेरी ऑडिट फर्म क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरी ऑडिट फर्म क्या कर रही है कंपनी के बिहाफ पे, ग्रुप के बिहाफ पे कुछ भी एश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कि हाँ हाँ जो ये अमाउंट है, जो एक्विजिशन अमाउंट है वो बिल्कुल सही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक वकालत कर रही हूँ मैं अपनी कंपनी या फिर मैं जिसकी ऑडिट कर रही हूँ उस अपने क्लाइंट की क्या कर रही हूँ, वकालत का काम कर रही हूँ कि हाँ हाँ ये अमाउंट जो है वो सही है। तो इसकी वजह से क्या थ्रेट क्रिएट हो रहा है, एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है। देखते हैं हम एडवोकेसी थ्रेट कैसे क्रिएट हो रहा है। Advice on finance in particular is also led to advocacy threat where the audit firm is seen to promoting the interest of the audit client। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि जो अमाउंट एक्विजिशन अमाउंट कंपनी ने शो की है 20 करोड़ की वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑडिट फर्म क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल to a potential provider of finance and that the firm is promoting or confirming the company ability to fulfill the debt obligation। हाँ, इसके अलावा क्या अब मैं ये तो हो नहीं सकता कि मैंने जो 20 करोड़ पे किए वो मेरे पास अवेलेबल थे। मैंने क्या किया होगा, मैंने फाइनेंस लिया होगा कहीं से, जो फाइनेंस अवेलेबल करवाने में हेल्प कर रही है जो हमारी ऑडिट फर्म। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं उसकी तरफ से एडवोकेसी कर रही हूँ कि हाँ हाँ जो इसके डेट ओब्लिगेशन है ये अपने डेट ओब्लिगेशन को कंप्लीट करेगी, ये एबल है, मेरे ऑडिट क्लाइंट जो है हमारा वो एबल है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, उसकी एडवोकेसी कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक हमारा एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है। तो हमें साथ में क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम देख लेते हैं एक बार कि हमें रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करनी है। जस्ट अ मिनट। यस, using exhibit 5 discuss any ethical issue arising and recommend any action which need to be taken by
द ऑडिट फर्म। सो क्या क्या मैंने एथिकल इशू हमने देख लिए हैं, 7 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन। सो 3 पॉइंट इज मोर देन इनफ। लाइक वी हैव डिस्कस सेल्फ interest threat, self-review threat, management threat, advocacy threat, and next one we have to recommend what action can be taken by the audit firm so that not any ethical issue would be arises in future. So let's discuss what can be the recommendation, what can be the so the audit firm should consider whether safeguard could be reduced to threaten at appropriate level. जैसे क्या क्या वो एक safeguard अप्लाई कर सकता है ताकि एक थ्रेट क्रिएट ना हो, तो क्या क्या कर सकता है? A written acknowledgement from the management that they are responsible for decision making regarding the planned international expenses and associated finance. Obviously मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं कह रही हूँ मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उस मैनेजमेंट से एक रिटर्न एक्नोलेजमेंट ले लेगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस डिसीजन के लिए, जो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेके या फिर फाइनेंस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको लेके, तुम रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी डिसीजन को लेके। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ? यूज एक सेपरेट टीम को यूज कर सकती हूँ क्या? जैसे कि जो मेरा ऑडिट फर्म है वो ऑडिट का जो काम है और जो नॉन ऑडिट वर्क है, मैं क्या कर सकती हूँ? जो नॉन ऑडिट वर्क है वो कोई और सेपरेट टीम परफॉर्म कर देगी एंड जो ऑडिट वर्क है वो सेपरेट टीम परफॉर्म कर देगी। तो यूज ऑफ द सेपरेट टीम ऑफ द स्टाफ टू प्रोवाइड द एडवाइस एंड टू वर्क ऑन द ऑडिट वेयर द प्रोवाइडर ऑफ अदर सर्विसेज शुड अवॉइड एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द अप्रोच एंड कंक्लूजन विच विल बी मेड बाय द ऑडिट टीम व्हेन कंसीडरिंग अकाउंटिंग एंड अदर जजमेंट। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ? एक सेपरेट टीम का यूज कर सकती हूँ ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए। एंड जो ऑडिट सर्विसेज है या फिर नॉन ऑडिट सर्विसेज है वो बीच में अपना मतलब जब ऑडिट फर्म अपना काम कर रही है तो नॉन ऑडिट जो वाली फर्म है वो जिस पे काम कर रही है तो वो बीच में क्या नहीं करेगी? इंटरफेयर नहीं करेगी। तो तो एक सेपरेट पॉइंट हमारे ये बन सकता है। एंड नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं? रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सिचुएशन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिट पार्टनर। हम क्या कर सकते हैं? एक इंडिपेंडेंट ऑडिट पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं जो टाइम टाइम पे क्या करता रहेगा? रिव्यू एंड मॉनिटर करता रहेगा सिचुएशन को कि कोई थ्रेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से सो 3 इज मोर देन इनफ। And if such safeguard cannot reduce to a threat to an acceptable level, then the advice sorry, if the safeguard can reduce to threat to an acceptable level, then the advice can be provided. Otherwise, then the non-audit services would not be provided by the audit firm. They should not involve in providing the non-audit services. आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। हमने अब फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है इसका, दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सेकंड वन आप खुद अपने माइंड में सोचेंगे कैसे। मैं कह रही हूँ कंसोलिडेशन एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है मुझे। कंसोलिड एज द ग्रुप ऑडिट फाइनेंस डायरेक्टर डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टाइज to complete the conversion from the Farland accounting standard to IFRS, and they have asked our audit firm to assist in this matter. So they have requested that as a part of the audit, your firm make the necessary adjustment to apply the IFRS accounting standards to ladder financial statement and then to consolidate the group financial statement. मुझे इस लाइन को पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि क्या रिस्क अराइज हो रहा है, इसमें क्या थ्रेट अराइज हो रहा है, कैसे ये मुझे क्या कह रहा है कि मैं प्रिपेयर करूं आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और देन उसको कंसोलिडेट करूं। अब आप खुद बताइए कि मैं पहले खुद को उसी अकाउंट मैं पहले खुद ही उनको प्रिपेयर करूंगी एंड देन खुद ही उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करूंगी? चेक करूंगी उनकी एक्यूरेसी, उनकी अप्रोप्रिएटनेस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली मैं खुद का काम खुद ही रिव्यू करूंगी तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है। इसको मुझे पढ़ने से ही समझ आ रहा है। तो इस तरह से हमें अपने माइंड को डेवलप करना है कि मैं पढ़ने से ही समझ पा रही हूँ। जैसे मुझे नहीं पता नीचे क्या लिखा हुआ है, पर मुझे पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि इसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मैं खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही क्या करूंगी? खुद ही उनको चेक करूंगी। तो इसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है। सो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी क्या कि द ऑडिट फर्म मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू अप्लाई द आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू लैडर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन टू कंसोलिडेट द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो in relation to performing the adjustment to
Ladder को financial statement, the court state that providing accounting and bookkeeping services to an audit client might create a self-review threat. मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी ऑडिट फर्म क्या नहीं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती, नहीं वो नहीं प्रिपेयर कर सकती उनके बिहाफ पे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसकी वजह से क्यों? क्योंकि एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा है। दिस थ्रेट अराइज, क्यों थ्रेट अराइज हो रहा है? बिकॉज the audit firm perform the necessary adjustment which form part of consolidation process. The audit firm team is likely to be overrelying on the work of their colleague and not rigorously audit the engagement. हम इसको सिंपल टर्म में भी लिख सकते हैं कि इसकी वजह से थ्रेट क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि ऑडिट फर्म खुद का काम पहले खुद उसको परफॉर्म कर रही है, पहले खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही है और उसको कंसोलिडेट कर रही है एंड देन खुद ही उसको क्या करेगी, फिर बाद में रिव्यू करेगी। देन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट, देन ऑडिट फर्म would not be would lose its independence and which would result in the quality of the audit would be that the quality of the audit performed is not well and so this way the threat would be arises. सो इसके लिए हम क्या सेफ गार्ड को यूज कर सकते हैं? द कोर्ट स्टेट दैट अनलेस द सर्विसेज आर रूटीन एंड मैकेनिकल इन नेचर दे शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर वो रूटीन नेचर के हैं, मीन उसमें कोई जो उसका इफेक्ट है, कोई मेजर इफेक्ट ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। अदरवाइज क्या है, मुझे कोड क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि मुझे ऐसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है। जैसे कि हमें क्या कहा गया कि इवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट रूटीन एंड मैकेनिकल टास्क। ऑब्वियसली बात है कि मैं एक ऐसा टास्क परफॉर्म कर रही हूँ जो एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो हम इसमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है एंड जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये रूटीन और मैकेनिकल टास्क तो हुआ नहीं। So these services should not be provided by the audit team. They should refuse to provide that services. So conclusion, at the end हम क्या कह सकते हैं? It is recommended that our firm does not advise to the group on its planned expansion due to its significance of the ethical threat to independence and objectivity which would arise. क्या कह रहा है कि इसलिए हम क्या एडवाइस दे रहे हैं कि फर्म जो ऑडिट फर्म है उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, क्योंकि जो थ्रेट अराइज हो रहा है उसकी इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिविटी को सिग्निफिकेंस अराइज हो रहा है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने थ्रेड को पहचान सकते हैं एंड देन थ्रेड को क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन से हमें देखना होता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हैपर हो रहा है। उसके बाद हमें बताना होता है कि कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है, देन हमें बताना होता है कि वो थ्रेट होता क्या है, देन हमें उसको केस से लिंक करके बताना है कि इस केस की वजह से क्या थ्रेट अराइज हो रहा है। और उसके बाद अगर मुझे रिकमेंडेशन कहा जाए, मेजरली जो हमारी रिकमेंडेशन वही जो होती है वो यही होती है कि हम एक सेपरेट एंगेजमेंट पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर हम ऑडिट और नॉन ऑडिट पर एक डिफरेंट ऑडिट टीम परफॉर्म करेंगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं ऑडिट टीम से, सॉरी मैनेजमेंट से, कि तुम इस काम को करने के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेजरली जो है हमारे रिकमेंडेशन ही हो सकती है किसी भी केस में, पर वो केस टू केस में भी अलग हो सकती है, नोट 100 टाइम्स की मीन्स मैं नहीं कह सकती कि 100% हर केस में यही होगी। अब ये केस टू केस डिफर भी कर सकती हैं। सो दिस वे हम क्या कर सकते हैं, अपने एथिकल इश्यूज को जो है वो चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमने जो ये हमारा हैमर ग्रुप वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने बिजनेस रिस्क देख लिया है, हमने बिजनेस रिस्क देख लिया, हमने ऑडिट रिस्क देख लिया है। आई थिंक इस क्वेश्चन में ROMM था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था। एंड देन हमने देख लिया व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर, हाउ टू डिफाइन द ऑडिट प्रोसीजर, हाउ टू राइट द ऑडिट प्रोसीजर, एंड देन हमने एथिकल इश्यूज के बारे में जाना। सो इस तरह से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फुल्ली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मेन चीज जो है हमारी कि टाइम हमें कितना देना है इस क्वेश्चन पे। मैं सजेस्ट करूंगी आई थिंक 1 hour and 15 minutes हमें इस क्वेश्चन पे देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी शॉर्ट नहीं होते हैं, वो लेंथी होते हैं। तो हमें
कोशिश करनी चाहिए कि 1 hour and 50 minutes में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। सो अभी धीरे धीरे तो हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, बट मे बी मैं आज बिजनेस रिस्क लिख रहा हूँ, तो मुझे आज बिजनेस रिस्क अगर लिखने में आधा घंटा लग रहा है, तो हो सकता है कल को मैं 15 मिनट में लिख दूं, कल को मैं हो सकता है 25 मिनट लगेंगे, फिर मुझे 20 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट क्या है हमारे, ठीक है, बिजनेस रिस्क के ऊपर हमारे 20 मिनट इज मोर देन इनफ। सो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, हमारे हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि मेन जो ऑडिट में क्या कहते हैं, ऑडिट स्पीड मांगता है। ऑडिट का एग्जाम जो होता है वो लेंथी होता है, तो हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना होता है। सो इस तरह से हम अपना ऑडिट एंड नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने कहा था, कुछ इंपॉर्टेंट ISS को पहले कवर करेंगे, देन आफ्टर दैट विल कवर 25 मार्क्स क्वेश्चन। जो भी उनमें इंपॉर्टेंट होगा हम 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन में उन सबको कवर करेंगे। सो ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये एथिकल इशू तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इंपॉर्टेंट ISS को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रिकमेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाए। एंड ओके, थैंक यू सो मच।